This kind of commentary only shows that if they think like this, they speak like this in the assembly, imagine what is the plight of the women in the state of Bihar, in the jungle raj that has been created in Bihar. मानसिक संतुलन नीतीश जी खो दिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रजनन दर के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया था और प्रजनन दर घट रहा है शिक्षा से भी। The comments made by Nitish Kumar ji, the most despicable, disgusting, atrocious, obnoxious and women virodhi comments that have been made only shows the impact of the influence of RJD. From Sushasan Babu now to Bekabu Babu. This kind of commentary only shows that if they think like this and speak like this in the assembly, imagine what is the plight of the women in the state of Bihar, in the jungle raj that has been created in Bihar. And instead of condemning this statement, Mamta Didi, Rahul Gandhi, Priyanka Vadra, Akhilesh Yadav, Arvind Kejriwal, they are all silent. So they endorse it. Tejasvi Yadav, Deputy CM, has justified it, said it is sex education. This shows the very little education he may be having. But if he is justifying these comments, it only shows the level to which this alliance has fallen. And this alliance, for them, it is common, such statements. Rajasthan has become #1 in rapes. Daily, some statements are made, including a statement by a minister. Mardon ka pradesh hai, that's why rapes take place, and he was given the ticket by Congress party. Mulayam Singh Yadav ji's party has said boys will be boys and justified rapes. We have seen Abu Azmi and Azam Khan statements also. So this is common parlance in the entire India alliance, and therefore they are justifying it, not condemning it. If they indeed condemn it, they should tell us what action should be taken. Nitish Kumar ji has no moral authority to continue as Chief Minister after insulting 50% of the population of the country. If he has any integrity, he must step down. After such a statement, this kind of mindset, this kind of actions that he has done in the assembly, the women of this country will never forgive this alliance. The women will never forgive Nitish Kumar ji. बहुत आपत्तिजनक है। बिल्कुल मानसिक संतुलन नीतीश जी खो दिए हैं जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं, यह बिल्कुल अमर्यादित है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वह कम होगा। और इनके पक्ष में तेजस्वी जी का बयान आना वह भी आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी, अब आप मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं हैं। आप बिहार की मर्यादा को, इस देश के संस्कार संस्कृति को आपने चौपट कर दिया है। बिहार आज सर्व से लज्जित हो उठा है। बिहार का सर झुक चुका है। इस तरह से महिला यानी मां बहन पर इस तरह का आपत्तिजनक बयान करना, इतना अशोभनीय काम आप किए हैं कि बिहार, देश, दुनिया और हमारी मां बहनें कभी आपको माफ नहीं करेगी। एनसीडब्ल्यू ने उनको कहा है कि आप माफी मांगे, लेकिन अभी तक कोई उधर से रिस्पांस नहीं मिला। माफी भी मांगनी चाहिए, राजनीति से उनको अलग भी हो जाना चाहिए, और एक बार नहीं 100 बार माफी मांगनी चाहिए। और जो उन्होंने अधर्म कर दिया है अपने बयानों से, जितना अन्यायपूर्ण बातें कह दी हैं, उनको गंगा जल पी पी कर, गंगा के तट पर तपस्या कर कर अपना जीवन से इसको बिताना चाहिए। ये और मर्यादित तरीके से रखा जा सकता था। जिस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा वो कतई सराहनीय नहीं है, और उन्हें एक उम्र का लिहाज करते हुए, महिलाओं का सम्मान करते हुए इस बात को और मर्यादित तरीके से रखना चाहिए था। आज सदन है कि आप लोग इस मामले को उठाएंगे सदन में? जी, अब पार्टी क्या स्टैंड लेती है ये तो हम लोग आपस में विचार विमर्श करके इस पर ये करेंगे। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मसार करने वाला है। इन्होंने न सिर्फ अपने दल को बल्कि पूरे बिहार को शर्मसार करने का काम किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने इनसे माफ़ी मांगने को कहा है। इस मैटर पर आप माफ़ी मांगिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए, इनका तो शुरू से ऐसा प्रवृत्ति रहा है
कि महिलाओं के प्रति वो सम्मानजनक नज़रिया नहीं रखते हैं। हमारे साथ व्यक्तिगत इन कुछ ऐसी घटनाएं पहले घटी जो आप लोग सब इस वाकया को जानते हैं। उस क्रम में भी इन्होंने कभी भी खेद तक नहीं जताया और महिलाओं के प्रति इनका दृष्टिकोण सम्मानजनक नहीं है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन्हें किसी तरह का कोई शर्म या अफसोस है अपने कृत्य पर। उन्होंने कल विशेष राज्य के दर्जे की फिर मांग की है, आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। अभी जो हालात हैं और जो राज्य में गतिविधियां हैं, जो उनका कर्तव्य है, उसका निर्वाह तो वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा लेकर दूसरे के ऊपर बेल फोड़ने से क्या फ़ायदा। हम लोगों को शर्म आती है कि हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री दोनों लोग बिहार से, और हमको लगता है कि प्रत्येक बिहारी को शर्म आ रही होगी आज कि उसका मुख्यमंत्री ऐसा अश्लील भाषा का प्रयोग करता है असेंबली में। इस तरह घटिया उसका ये बयान होता है, एकदम थर्ड क्लास कटर का जो बयान होता है वो बयान था नीतीश कुमार का। यह परिचायक है। हमको लगता है कि नीतीश कुमार दिमाग से ये लूज़ हो चुके हैं। लोग बताते रहते हैं कि वो अपने सहयोगियों का नाम भूल जाते हैं, यह भी भूल जाते हैं कि वो गृह विभाग के प्रभार में वही हैं, ये सब भूल जाते हैं। उनका लगता है कि दिमाग फैल गया। नहीं तो ऐसी भाषा, इतनी अपमानजनक भाषा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जवान युवक युवतियों के लिए इतना घृणित स्तर का ये भाषा है कि हम क्या कहें। बिहारी होने के नाते तो हमको शर्म आती है कि हमारे प्रांत का मुख्यमंत्री ऐसा गिरा हुआ हो, अश्लील विचार का, अश्लील सोच का, अश्लील भाषा का। साहब इनको तो तुरंत हमको लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए या क्या। इनको समझ लेना चाहिए कि भाई मेरा दिमाग फेल कर गया, मुझे बातें याद नहीं रहती हैं, मैं उल जलूल बोल देता हूँ। ये लेकिन समझेंगे नहीं, सत्ता ये छोड़ेंगे नहीं। इनको हमको लगता है कि क्या हो, बिहार की नियति क्या है। हम लोग को, हम बिहारी हैं, जो सभी बिहारियों को सोचना होगा, पढ़े लिखे बिहारियों को सोचना होगा। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा की भूमिका और जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिकाओं को समझाने के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसको किस तरह से देखते हैं? हर नेता को महिलाओं के लिए सम्मान से बोलना चाहिए, सम्मानित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही गंभीर नेता हैं और मुझे लगता है वो खुद भी समझ रहे होंगे कि इस तरह की भाषा महिलाओं को दुखी करती है, हमारा मनोबल तोड़ती है। तो मुझे आशा है कि आगे से ऐसी भाषा का प्रयोग वो न करेंगे। महिलाएं समझती हैं, उनको अच्छी भाषा में भी और अपनी बात को एक सुसंस्कृत भाषा में भी किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रजनन दर के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया था, और प्रजनन दर घट रहा है शिक्षा से भी। और प्रजनन दर के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी वो प्रजनन दर को रोकने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगी, और उसका कैसे रोक सकती है उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है। तो भाई आजकल तो जो प्रजनन दर रोकना है उसमें तरह तरह की बात कही जाती है, परिवार नियोजन भी लोग कराते हैं। और बिहार के सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने परिवार नियोजन पर उतना बल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बल दिया कि जो लड़कियां हैं उसको हमको शिक्षित करना है। तो उसी को पूरी तरह से अवेयर करने के लिए लोगों के सामने कोई बात रखी है। बीजेपी ने काफ़ी हंगामा मचाया, बोला कि माफ़ी मांगो। तो बीजेपी कौन सा इशू है जिस पर वो नहीं बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री जी बोल दिए थे एक बार कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। तो बोलने के लिए भाषा में कभी कभी अंतर कुछ होता है तो लोग बवाल करते हैं। ये ठेठ भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश की मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो बवाल करें या जो करें वो अपना, उनकी इच्छा है।